students, how are you? Hope you are all fine. Okay, in today's class we will be discussing different numericals on electrostatics. Fine. So those numericals will be basically from electric field, electric potential, capacitance, energy stored in a capacitor, or the potential energy and torque. Fine. So in today's class, these topics and the numericals based on these topics will be discussed. Fine. So first question you can see from the board. First question, we have a square ABCD. See, in a square ABCD, 4 charges are placed. At point A, Q is placed. At point B, 2Q is placed. At point C, 3Q is placed, and at point D, 4Q is placed. Fine. Now what is the question? Question is that Q, 2Q, 3Q and 4Q charges are placed at the 4 corners of a square ABCD. So the electric field at the center, in center line joining between the diagonals, you can see from the figure, there is a center P. So the question is that the electric field at the center P of the square has the direction along. So P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होगा? What should be the direction of the electric field, or you can say the resultant electric field or net electric field, total electric field at point P. So what will be the direction of net electric field at point P? This is our question number 1. Fine. So we know that whenever we have 2 charges, so we have 2 charges, one is Q, another is say 2Q. So the direction of the electric field is from lower charge to higher charge to lower charge. Fine. So at point P we have 3Q charge at point C and Q charge at point A. We know that direction of the electric field is from higher charge to lower charge. Fine. So at point P, the direction of electric field will be along PA. For this case, it will be along PB. Fine. So you can write what? E plus Q plus E plus 3Q has direction PA. Fine. Similarly, E plus 2Q plus E plus 4Q has direction along PB. So obviously, the direction of the resultant electric field will be CB, C to B. So that direction will be the resultant direction of the electric field. Options are given: AB, CB, AC and BD. Correct option will be CB. Fine. So correct option will be CB. Means the direction, resultant direction of the electric field will be along CB. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि 2 equal charges small q are placed at a distance of 2a. We know that the length of the dipole is always 2a, and the third charge minus 2q is placed at the midpoint. The potential energy of the system is वो निकालने के लिए दिया है. मतलब क्या है? एक डाइपोल है जिसका लेंथ 2a है, उसमें 2 साइड में 2 इक्वल चार्जेस स्मॉल क्यू करके तुमने बिठा के रखा है. अभी एक तीसरा वाला चार्ज जिसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है -2q, वो अभी आके उसका मिड पॉइंट में तुमने रख दिया. तो मिड पॉइंट पे रखने के लिए तो सिस्टम का पूरा सिस्टम का मतलब डाइपोल के लिए जो पूरा सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वही है क्वेश्चन. समझ में आया क्वेश्चन?
क्या पूछने के लिए बोला गया है? पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला गया है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिया है, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0a। ऑप्शन बी में है 6 क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0a। ऑप्शन सी में है -7 क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0a। ऑप्शन डी में है -9 क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0a। ठीक है, अभी देखो उसको कैसे करेंगे सॉल्व। मतलब क्या था, एक डाइपोल था, यहाँ पे क्या था, एक चार्ज था स्मॉल क्यू, यहाँ पे भी क्या था, चार्ज था स्मॉल क्यू। अभी मिड पॉइंट हमारा मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लाया, -2q। ठीक है, पूरा डिस्टेंस जो है वो 2a है। ठीक है, अभी if it is point A, if it is point C, if it is point B, so the distance AC will be A and the distance CB will be also A, since C is the midpoint of AB. So now what we can write? Potential energy of AB. Potential energy of AB, what we can write? According to the formula we know 1 by 4 pi epsilon 0। बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, दो चार्ज का प्रोडक्ट बाय उसका डिस्टेंस। मतलब उसमें दो चार्ज का प्रोडक्ट, ये दो चार्ज का प्रोडक्ट बाय इसका डिस्टेंस, ये हो जाएगा क्या, ए बी में पोटेंशियल एनर्जी। अभी क्या निकालेंगे, अभी बीसी में पोटेंशियल एनर्जी चलो निकालते हैं। बीसी के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, उसमें चार्ज क्या है, 2q है, और एक चार्ज क्या है, -2q है, एक चार्ज है q। ठीक है, बाई इसका डिस्टेंस बन गया तुम्हारा a। अभी क्या करेंगे, सी ए के लिए निकालेंगे, सी और ए के लिए करेंगे। सी और ए के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। दो चार्ज सी और ए में दो चार्ज क्या क्या होगा, सी ए के लिए रिजल्टेंट जब निकालेंगे, ए बी निकाला, बी सी निकाला, बी सी ए निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट के लिए क्या आ जाएगा, क्यू और क्यू और इसको मैंने सी दिया ना, उसको तुम बी डाल दो ना, इसको सी डाल। ठीक है, तो ए बी हम लोग आ गया क्यू -2q बाई ए, बी सी आ गया -2q क्यू और ए, और सी और ए में क्यू और क्यू बाई उसका डिस्टेंस आ गया 2a आ गया। अभी टोटल सिस्टम का जो होगा पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, तीनों का प्लस हो जाएगा। तीनों का प्लस मतलब UAB प्लस UBC प्लस UCA। ठीक है, चलो वैल्यू बिठा देते हैं इसमें, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा, -2q स्क्वायर बाई ए, उसमें क्या आ जाएगा, -2q स्क्वायर बाई ए, लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस q स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, अभी उसको एलसीएम करना पड़ेगा, एलसीएम में डाल के देखना पड़ेगा। एलसीएम करने के बाद क्या आता है, चलो एलसीएम करते हैं। एलसीएम करने के बाद हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 था। अभी क्या आ जाएगा, 2a हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम, यहाँ पे -4q स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस q स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7q स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा।
-7 क्यू स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी में होगा, जो 1/4πε0 -7 क्यू स्क्वायर बाई 2a गिवन था। ठीक है, आ गया समझ में? बताओ समझ में आया कि नहीं? क्या था? एक डायपोल था, डायपोल में लेंथ कितना होता है? 2a, यहाँ पे भी गिवन था 2 ही है। एक चार्ज वाला चार्ज जो -2q का मैग्नीट्यूड का है, वो हम लोगों ने मिड पॉइंट में बिठाया था। तो क्या बोला था क्वेश्चन में कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम का, निकालो। तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने ए और बी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो निकाल दिया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। Q1 Q2 मतलब दो चार्ज होगा, दो चार्ज का प्रोडक्ट बाय इसका डिस्टेंस होगा। तो ए बी में डिस्टेंस कितना है? ए है। ए और बी में चार्ज क्या क्या है? एक में 2 है, 2q है, एक में q है, एक में -2q है, एक में q है। जैसे हमने UAB निकाला, सिमिलरली हमने UBC निकाला, सिमिलरली हमने UCA निकाला। अभी क्या किया हमने? अभी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जब डायपोल में होगा तो क्या करना पड़ेगा? सबका पोटेंशियल एनर्जी का सम करना पड़ेगा। तुमने सम कर दिया, LCM कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, उसका आंसर आ गया। बहुत इजी है ना क्वेश्चन। Now let's solve the question number 3. In question number 3, what is given? Given 4 plates, obviously parallel plate of same area are joined as shown in the figure. The distance between each plate is d, small d. Equivalent capacitance across A and B will be what? मतलब 4 प्लेट है, देखो फिगर में सब पैरेलल प्लेट है। 4 पैरेलल प्लेट है जिसका एरिया सेम है, उसको जैसे फिगर में दिखाया गया है ऐसे हमने ज्वाइन किया। तो हर एक प्लेट के अंदर का जो डिस्टेंस है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी तो 2 प्लेट का डिस्टेंस था स्मॉल डी, यहाँ पे भी 2 प्लेट का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। क्या बोला है तुम्हें? ए और बी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है? फर्स्ट ऑप्शन इज 2a एप्सिलॉन 0 बाई डी, सेकेंड इज 3a एप्सिलॉन 0 बाई डी, थर्ड ऑप्शन इज 3a एप्सिलॉन 0 बाई 2d, फोर्थ ऑप्शन इज a एप्सिलॉन 0 बाई डी। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है a एप्सिलॉन 0 बाई डी। तो 60% बच्चा ये ऑप्शन देख के a एप्सिलॉन 0 बाई डी इसको कर देगा, पर ये गलत है। इसको लगेगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटी तो हम लोगों को पता है a एप्सिलॉन 0 बाई डी, शायद ये वाला ऑप्शन डी तो हो जाएगा, उसको लग सकता है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जाके सी और डी में हर एक ऑप्शन को चूज करते हैं, अक्कर बक्कर करके बी और सी या सी और डी में लगा देते हैं। तो सी और डी जो उसका मन में होगा तो डी देखेगा ये एप्सिलॉन 0 बाई डी तो मैंने कभी पढ़ा था शायद, तो लगा देगा, पर ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, क्या है देखो, जो प्लेट है वो क्या है? आइडेंटिकल है। मतलब गिवन प्लेट्स आर इक्विवेलेंट टू 3 कैपेसिटर्स। 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह है। ठीक है, जो हर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। कैसे? मैंने बोला कि 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक पैरेलल प्लेट यहाँ पे है, एक पैरेलल प्लेट यहाँ पे है, एक पैरेलल प्लेट यहाँ पे है। तो यहाँ के ये दोनों को लेके एक पैरेलल प्लेट, ये दोनों को लेके एक, ये दोनों को लेके एक। यहाँ पे क्या पैरेलल, कितना पैरेलल प्लेट हो गया? 3 पैरेलल प्लेट हो गया। तीनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। मान लो सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? C है। तो अगर तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम जोड़ देंगे, क्योंकि Cp तो प्लस होता है, C प्लस C प्लस C, मतलब Cp क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3C हो जाएगा। अभी C का वैल्यू कहां से लाओगे? क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस हम लोगों को पता है वो क्या है? A एप्सिलॉन 0 बाई डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3A एप्सिलॉन 0 बाई डी। मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 3A एप्सिलॉन 0 बाई डी। मतलब यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 3 पैरेलल प्लेट है।
देखो मैंने एरो दे के जो डायग्राम में दिखाया, मतलब यहाँ पे ऐसे 3 पैरेलल प्लेट है। एक पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस अगर तुमने C मान लिया, क्योंकि सभी का तो एरिया सेम है, सभी का तो डिस्टेंस सेम है, मतलब इसका कैपेसिटेंस अलग कैसे आएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला था? A/0/d। मतलब कैपेसिटेंस कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? A के ऊपर डिपेंड करता है, D के ऊपर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन 0 तो हर एक समय समान ही होगा, ठीक है। मतलब A भी इक्वल है, D भी इक्वल है, तो कैपेसिटेंस तो आइडेंटिकल ही होगा ना, तो आइडेंटिकल कैपेसिटर से। तो 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर से हम लोगों के पास तीनों कैसे लगा है? सीरीज में तो नहीं लगा है, कैसे लगा है? पैरेलल में लगा है। तो पैरेलल में लगा है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेगा? इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम तीनों को सम करके निकालेंगे, क्योंकि नो दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C1 plus C2 plus C3. So we got equivalent capacitance as 3C. Now what is the value of C? C is the A/0/d. So what will be its total value? It will be 3A/0/d. Hope it is clear. हो गया ना क्लियर? अभी देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे जैसे 3 पैरेलल प्लेट है, तुम्हें क्वेश्चन में देख के समझना पड़ेगा कितना पैरेलल प्लेट है, उतना पैरेलल प्लेट तुम हर एक समय इसी टाइप का क्वेश्चन में हर एक समय सभी पैरेलल कनेक्शन नहीं होगा, कभी भी सीरीज में कनेक्शन नहीं होगा। बाद में जाके दिखाऊंगा कैसे सीरीज कनेक्शन का डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लगा सकते थे, 5 लगा सकते थे, तो क्या ऑप्शन हो जाता था? 4A/0/d, 5A/0/d, N A/0/d, अगर n नंबर से ऐसे कनेक्टेड थे तो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? ठीक है, उसका आंसर पता हो गया ना कैसे हो गया? 3A/0/d। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। So in question number 4, it is given that in an isolated parallel plate capacitor of capacitance C, the 4 surface have charges Q1, Q2, Q3 and Q4. The potential difference between the plates will be, ठीक है। 4 ऑप्शन गिवन है कि Q2 plus Q3/2 होगा और Q1 plus Q4/2C होगा, या तो Q2 minus Q3/2C होगा, या तो Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4/2C होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या गिवन है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है जिसमें 2 प्लेट तुम डायग्राम में देख रहे हो। तो पहले प्लेट का लेफ्ट साइड में क्या है? Q1 है, राइट साइड में क्या है? चार्ज Q2 है। सेकेंड प्लेट का लेफ्ट साइड में चार्ज क्या है? Q3 है, राइट साइड में चार्ज क्या है? Q4 है, ठीक है। एक चीज अभी तुम लोगों को ये करने के लिए पता होना चाहिए, वो क्या है? जो फेसिंग सरफेस है, उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रहता है। जो फेसिंग सरफेस है उसमें इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस बन जाता है। मतलब यहाँ पे फेसिंग सरफेस कौन सा है? Q2 और Q3 है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू माइनस Q3। क्या लिख सकते हैं? Q2 इज इक्वल टू माइनस Q3। ये जो फेसिंग सरफेस है उसका चार्जेस इक्वल ऑपोजिट बन जाता है। अगर इसमें चार्ज डाल दिया तुमने -4 माइक्रोकूलम, इसमें हो जाएगा +4 माइक्रोकूलम। इक्वल बन जाएगा पर ऑपोजिट बन जाएगा, ठीक है। तो अभी चलो निकालते हैं कि इस साइड में कितना पोटेंशियल होगा, इस साइड में कितना पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू Q, मतलब इसका चार्ज बाय इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है। चार्ज बाय उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस तो इसमें इक्वल है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -Q3/C हो जाएगा। उसका भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा, खाली उसका क्या हो जाएगा? -Q3/C हो जाएगा। ये पोटेंशियल कहां से आया? V इज इक्वल टू Q2/C, इस साइड में पोटेंशियल। अभी इस साइड में अगर तुम पोटेंशियल निकालोगे, तो इस साइड में पोटेंशियल क्या हो जाएगा?
माइनस Q3/C हो जाएगा। दोनों की कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल में हम लोगों को क्या पता है कि पोटेंशियल इक्वल होता है, तो इसका पोटेंशियल इस साइड में, पोटेंशियल इस साइड में, पोटेंशियल हमने इक्वल कर दिया कि नहीं? हमने इक्वल कर दिया। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? मतलब हम लिख सकते हैं कि V इजिकल टू Q2/C, एक इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर हम V इजिकल टू माइनस Q3/C और एक इक्वेशन लिख सकते हैं। एक और दो अलग अलग इक्वेशंस बना सकते हैं कि नहीं? क्योंकि पैरेलल में तो पोटेंशियल इक्वल होता है। अभी उसको जोड़ दो, मतलब अभी 1 + 2 कर दो। अभी क्या कर दो? 1 + 2, मतलब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो। V + V क्या बन जाएगा? 2V बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q2/C माइनस Q3/C, एलसीएम क्या हो जाएगा? C। अभी क्या आ जाएगा? Q2 - Q3/C। 2V इजिकल टू क्या आ गया? Q2 - Q3/C। तो यहाँ से V इजिकल टू क्या आ जाएगा? V इजिकल टू आ जाएगा Q2 - Q3/2C। ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल। ठीक है, ये हो जाएगा पोटेंशियल हम लोगों का। तो Q2 - Q3/2C, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। हो गया सॉल्व, समझ में आ गया ना? चलो क्वेश्चन 5 करते हैं अभी। इन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन that consider a parallel plate capacitor having plates of unequal area. Why unequal area? Because in the figure you can see the left parallel plate is higher, means length of the length or area of the left parallel plate is more than the area of the right parallel plate. मतलब दोनों का जो एरिया है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। वो तो फिगर से ही देखने से पता लगता है। तो व्हेन बैटरी सप्लाइज, मतलब ये दोनों देखो पैरेलल प्लेट को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, व्हेन बैटरी सप्लाइज प्लस Q1 एंड माइनस Q2 चार्जेस टू 2 प्लेट्स, मतलब फिगर में जैसे गिवन है कि पहले वाला लेफ्ट साइड वाला पैरेलल प्लेट को प्लस Q1 चार्ज मिला और छोटा वाला जो है राइट साइड में वो पैरेलल प्लेट में माइनस Q2 चार्ज मिला। तो नीचे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो तुम लोगों को देखना पड़ेगा। क्या क्या गिवन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 शुड बी मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस Q2, और 4 नंबर ऑप्शन क्या है? नाम, मतलब कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो पिछले प्रॉब्लम में जैसे हम लोगों ने कराया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे था, उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि फेसिंग सरफेस हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो फेसिंग सरफेस का इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? उसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है। वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट था कि फेसिंग सरफेस हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। उसमें था Q2 इज इक्वल टू माइनस Q3 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2 हो जाएगा। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन 1, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अभी। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज गिवन ए मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस T is equal to D/2 is inserted between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C. The new capacitance will be, मतलब क्या है? मतलब एक मेटल प्लेट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक मेटल प्लेट को जिसका थिकनेस T is equal to D/2 है, मतलब तुम्हारे पास एक पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अभी उसमें तुमने क्या किया? उसमें तुमने अभी एक मेटल को इंसर्ट किया। तो पैरेलल प्लेट में डिस्टेंस कितना था? D है,
अभी डिस्टेंस, अंदर का डिस्टेंस क्या है, थिकनेस उसका d/2 है, मतलब उसका जो मेटल तुमने इंसर्ट किया उसका थिकनेस क्या है, d/2 है। हम लोगों को क्या पता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A∈0/d - t प्लस बताओ t/dk, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है ना। और t/dk और t/k you can write, or t/dk also you can write, but better write k। हाँ, वो फॉर्मूला क्या था, ये था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t क्या है, d/2 है, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो चलो c का वैल्यू अभी चेंज करो, A∈0/d माइनस d/2 प्लस d/2/k। अभी k का वैल्यू कहां से लाओगे, इन द क्वेश्चन k इज गिवन, नहीं गिवन, k का वैल्यू कहां से लाओगे, कौन सा बिठाओगे, k 1 बिठाओगे, 0 बिठाओगे, क्या बिठाओगे। देखो मेटल प्लेट है, मतलब फॉर ए मेटल द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंफिनिटी, फॉर ए मेटल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंफिनिटी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्मॉल क्वेश्चन। So here k will become infinity. So it will be what, A∈0/d/2, because k is infinity, 1/infinity is 0, so it will become A∈0/d/2. Fine, A∈0/d/2 फाइन। तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग क्या मिला, c इज इक्वल टू A∈0/d/2, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा तो 2A∈0/d हो जाएगा, 2A∈0/d हो जाएगा। मतलब A∈0/d हम लोगों को पता है कि वो कौन सा था, c था। तो अभी न्यू कैपेसिटेंस जो होगा c डैश वो क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे छोटा क्वेश्चन था, ज्यादा करने का जरूरत भी नहीं था, पर एक चीज था, मेटल प्लेट। तो मेटल प्लेट के लिए k का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनिट होता है, वो मत भूलना, वो कॉपी में अभी लिख के रखो नोट करके कि मेटल प्लेट के लिए k का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी होता है। तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो करोगे तो करते करते लगेगा कि k का वैल्यू तो गिवन नहीं है, k क्या बिठाएंगे, तो छोड़ दे के चले आओगे, पर नहीं, k का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी बिठाना पड़ेगा। कोई भी मेटल प्लेट के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका वैल्यू जो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, तो इन्फिनिटी हम ले सकते हैं। तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी बिठाने से d/2/k मतलब d/2/infinity मतलब तो 0 बन गया, तो नीचे d - d/2 मतलब d/2 रह गया। तो उसका आंसर क्या हो गया, 2c हो गया। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आ गया ना समझ में, वो मेटल प्लेट वाला कॉपी में लिख कर रखना नोट करके, ठीक है, कि k का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। आगे जाके मैं और एक मेटल प्लेट का तुम लोगों को होमवर्क दूंगा, तो याद करके तुम लोगों को वहां पे भी k का वैल्यू इन्फिनिटी बिठाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी 7 की ओर चलते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन in an isolated parallel plate capacitor of capacitance C, the plates have charges Q1 and Q2. The potential drop between the plates is option given है, there will be 4 option, Q1 plus Q2 by 2C or Q1 minus Q2 by 2C or Q1 by 2C or minus Q2 by 2C. Fine. So previously also we did one solve one exercise problems which was actually based on isolated parallel plate capacitor. So now what is just different for this numerical, that you should know one thing, that if you have two parallel plates having charges say Q1 and Q2, so the outer surface means this surface and that surface. So in outer surface charge will be Q1 plus Q2 by 2. Here also the charge will become Q1 plus Q2 by 2. Fine. So
after redistribution of charges, the inner plate will get Q1 minus Q2 by 2, and this inner plate will get minus of Q1 minus Q2 by 2. Fine. So first, if it is plate A and if it is plate B, so from figure you can see the inner plate of plate A will become Q1 minus Q2 by 2, and inner plate of B is now minus Q1 minus Q2 by 2. Fine. So from where we get this concept? Because we know that the facing surfaces are of equal but opposite charges. ठीक है, अगर इसमें उसमें भी था, इसमें अगर चार्ज 4 हो जाएगा तो इसमें माइनस 4 हो जाएगा. ठीक है, वो कॉन्सेप्ट में हमने इसमें अगर माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2 है तो इसमें माइनस ऑफ दिस हो जाएगा. ठीक है, अभी हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला गया था कि पोटेंशियल ड्रॉप निकालो बिटवीन द प्लेट्स. तो बिटवीन द प्लेट्स मतलब क्या है, इसमें है, ये रीजन में है, निकालने के लिए बोला है, ये रीजन में पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है. तो इसमें निकालेंगे क्या? नहीं, इसमें निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे इसमें. तो इस रीजन में पोटेंशियल निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, मान लो कि इस प्लेट में एक पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इस प्लेट में एक पोटेंशियल डिफरेंस है V2, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2 हो जाएगा. समझ में आ गया ना? पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 हो जाएगा. तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 करने से V का फॉर्मूला क्या था? चार्ज बाय कैपेसिटेंस. इसका फॉर्मूला क्या था? चार्ज बाय कैपेसिटेंस. तो इसका क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 बाई 2C बन जाएगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 बाई 2C. तो मतलब ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट. समझ में आ गया? एक आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का था पहले एक. ठीक है, अभी दूसरा है. इसमें तुम लोगों को क्या जानना पड़ेगा एक्स्ट्रा कि आउटर सरफेस जो होता है पैरेलल प्लेट का, वो आउटर सरफेस में चार्जेस क्या हो जाएगा? अगर एक प्लेट में चार्जेस है Q1, दूसरे प्लेट में चार्ज है Q2, तो आउटर सरफेस में चार्ज क्या हो जाएगा? उसका एवरेज हो जाएगा, मतलब Q1 प्लस Q2 बाई 2. एक प्लेट में अगर चार्ज रहेगा 4 माइक्रोकूलम, दूसरे प्लेट में अगर चार्ज रहेगा 8 माइक्रोकूलम, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 8 प्लस 4 बाई 2 मतलब 6. हो गया समझ में? हमने यहाँ पे क्या लिया है? Q1 Q2 लिया है. अगर Q1 Q2 नहीं देखे, तुम्हारा कोई चार्ज दिया होगा 10 माइक्रोकूलम, 15 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम ऐसे, तो भी तुम ये कर सकते हो क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अभी तुम्हें पता हो गया. ठीक है, तो आउटर सरफेस ऑफ पैरेलल प्लेट विल हैव चार्जेस. यहाँ पे क्या हो जाएगा? एवरेज, मतलब Q1 प्लस Q2 बाई 2. फाइन. सो वी नो दैट द फेसिंग सरफेस हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. So after the redistribution of charges or after the distribution of charges, the potential drop in the facing surface will be the charges in the facing surface will become, for plate A it will become Q1 minus Q2 by 2, means opposite of that, and in phase B, inner surface of phase B will get minus of Q1 minus Q2 by 2. Now in the question the potential drop between the plates was asked. Potential drop outside the parallel plate was not asked. If it was asked, then you have to take the potential of outside the parallel plate, that should be Q1 plus Q2 by 2 by C. Then answer will be option A. Fine. Answer will be option A. तो ध्यान से सुना करो ये बात कि ये क्वेश्चन का इसी क्वेश्चन ही आएगा, ऐसे कोई बात नहीं. इस क्वेश्चन को बदल के भी आ सकता है. कैसे? कि आउटर सरफेस में बोला गया है. आउटर सरफेस मतलब कहाँ है? आउटर सरफेस मतलब ए का इधर, बी का इधर अगर बोला जाएगा तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई C, मतलब क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2C बन जाएगा. अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द प्लेट्स. बिटवीन द प्लेट्स कौन सा रीजन है? ये रीजन है. इसमें कौन क्या चार्ज है?
ये चार्ज है, तो इसके लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बाई 2 बाई सी। मतलब इसका आंसर ऑप्शन बी होता अगर इसी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए होता अगर पोटेंशियल ड्रॉप एट द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द पैरेलल प्लेट्स, तो ऑप्शन ए होता करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, आ गया ना समझ में। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 का तुम क्वेश्चन नंबर 7A डाल के और एक क्वेश्चन कॉपी में लिख कर रखो कि सेम ही क्वेश्चन है। इन एन आउटर आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, द प्लेट्स हैव चार्जेस Q1 एंड Q2, द पोटेंशियल ड्रॉप एट द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट्स विल बी। पोटेंशियल ड्रॉप आउटर सरफेस के लिए भाई या बाहरी सरफेस के लिए अगर तुम निकालोगे तो वो वाला क्वेश्चन तुम 7A डाल के लिख कर रखो। ये क्वेश्चन 7 था जो अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए बोला है। तुम 7A में बाहर का सरफेस के लिए भी पोटेंशियल ड्रॉप तुम निकाल सकते हो, वो तुम लिख कर रख सकते हो। ठीक है, तो उसका ऑप्शन ए हो जाता, मतलब Q1 प्लस Q2 बाई 2 से हो जाता। ठीक है, समझ में आया ना। चलो तो आगे की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। चलो इन क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है कि 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर। तुम देख सकते हो फिगर में Q1 नीचे Q2 जैसे ग्राउंड लेवल में है, उसका डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर है। ए थर्ड चार्ज Q2 इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। मतलब Q1 से Q2 जो है, Q1 से Q3 जो है उसको एक रेडियस पकड़ के उसका एक आर्क ड्रॉ किया। वो आर्क Q3 से प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह एक कार्व पाथ में D पॉइंट में आके गिरता है। Q2 में नहीं जाता है, D पॉइंट में जाता है। तो आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम एक पॉइंट, वहां पे C पॉइंट गिवन है। ठीक है, C to D। ठीक है, Q3 में एक पॉइंट गिवन है C, उसमें C to D आता है। ठीक है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम गिवन Q3K बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। टोटल पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी गिवन है Q3K बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो अभी बोला गया है कि चलो K का वैल्यू क्या है निकालो, K का वैल्यू क्या है निकालो। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन भी है कि Q3 और Q2 का जो बीच का डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ का जो बीच का डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है और ये पॉइंट हम लोगों के तुम्हारा 40 सेंटीमीटर है। ये वाला हाइट जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। ऐसे क्वेश्चन गिवन है। और Q3 कैसे जा रहा है, Q3 ऐसे आर्क पकड़ के Q3 नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला गया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अभी हम वैल्यू निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया। अभी क्या हो जाएगा Q1 Q3 बाई उसका डिस्टेंस। देखो तो Q1 Q3 का डिस्टेंस क्या है 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर। फाइन। और कौन सा चार्ज है Q2 और Q3, Q2 और Q3, उसका डिस्टेंस देखो तो कितना है Q2 और Q3 का डिस्टेंस, Q2 और Q3 का डिस्टेंस 0.1। चलो शाबाश 0.1। ठीक है, 0.1 है। ये एक पोटेंशियल निकाला। माइनस करेंगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 बाई 0.4 और
Q2 Q3 by 0.5। ठीक है, ये हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? वो तो हम लोग का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब इनिशियली था तो 50 सेंटीमीटर था, फाइनल जब हो गया तो 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, क्योंकि फाइनल जब हो गया तो Q2 से D पॉइंट में जाके गिर गया तो 10 सेंटीमीटर हो गया उसका डिस्टेंस। फाइन, इनिशियली तो Q2 और Q3 का डिस्टेंस 50 था, पर यहाँ पे Q2 और Q3 का डिस्टेंस हमने 10 ले लिया कि फाइनल जब जाके गिरा तो 10 सेंटीमीटर दूर जाके गिरा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। इसका वैल्यू अभी तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका वैल्यू अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो कुछ इस तरफ आएगा 1/4πε0 8 Q2 Q3 आ जाएगा। तुम सॉल्व करके देखना, सिंप्लीफाई करके देखना। मैं सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली मैं लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Q3 बाहर कर दो, 4πε0 8 Q2 हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? हम लोग का इतना हो जाएगा। तभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था? चेंज इन एनर्जी कितना था? Q3/4πε0 K था। बोला गया था K का वैल्यू कितना है? कंपेयर करो, Q3/4πε0 K का वैल्यू कितना है? 8 Q2 है। ठीक है, तो यहाँ पे K का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 Q2। मतलब ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन तुम लोगों का करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा अलग था, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम डायरेक्टली एग्जाम में नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ठीक है, तो ये घर में तुम प्रैक्टिस कर लेना। शायद तुमने कॉपी में उठा लिया सभी क्वेश्चन, तो घर में तुम प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और अगर ये क्लास तुम्हें अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।